Good afternoon, everyone. I, Suyash Sagar Bajpayee, course coordinator of this research methodology add-on course, welcomes you all in the first session of day 9. It is with great pleasure and immense pride that I stand before you today to introduce a distinguished member of our academic community, Dr. C.L. Prajapati, sir. Sir serves as an associate professor in the Department of Economics at our esteemed institution, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University. With a sterling academic career and a wealth of accomplishment, Sir has not only contributed significantly to the field of economics, but has also been a beacon of inspiration for both students and fellow faculty members. His dedication to the pursuit of knowledge and scholarly excellence is truly commendable. Sir's academic journey is marked by the impressive statistic of having attended 100 seminars, reflecting his unwavering commitment to staying abreast of the latest development and insight in the dynamic field of economics. This is not only demonstrate his passion for continuous learning, but also underscore his role as a proactive intellectual within our academic community. Furthermore, Sir impact extend beyond the lecture halls and seminar rooms. He has authored 3 noteworthy books that have enriched the academic discourse in economics, showcasing his depth of understanding and scholarly acumen. In addition to his authored works, he has also edited 2 books, contributing to the dissemination of knowledge and fostering intellectual dialogue in our academic circles. Sir's commitment to research is evident through his publication record with 10 research papers published in reputable journals. These publications reflect the rigor and relevance of his scholarly contribution, advancing our understanding of economic phenomena and contributing to the global academic conversation. In recognition of his stature in the field, Sir is a life member of All India Economic Association, a testament to his standing among peers at national level. Additionally, his affiliation with the MP Regional Economic Association further highlights his active engagement in the regional academic community. As we celebrate such accomplishments today, let us not only acknowledge his academic achievements, but also draw inspiration from his dedication to the pursuit of knowledge, his scholarly contribution, and his role as a mentor and guide to many aspiring minds within our university. Please join me in extending a warm welcome and sincere appreciation to Dr. C.L. Prajapati, sir, an exemplary academician and an invaluable asset to Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University. We welcome you, sir. Mic, इसको लगाना है। इसको लगाना भी है ना? हाँ, सर ऑन है, ऑन। धन्यवाद वाजपेयी जी, सभी स्टाफ मेंबर्स और सभी सम्मुख बैठे हुए विद्यार्थीगण, स्कॉलर्स, आप सभी को और समाजशास्त्र विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपके सामने उपस्थित होने का ये अवसर प्रदान किया। और वाजपेयी जी ने हमारे बारे में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आपसे चर्चा की है, उसके लिए भी धन्यवाद। और आज का जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो चर्चा का विषय कोरिलेशन, सहसंबंध। विशेष रूप से जब हम शोध की बात करते हैं तो शोध में सहसंबंध का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। सारी की सारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट है, सहसंबंधित है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, लाइफ एक्सपेक्टेशन हो, सभी क्षेत्रों में एक दूसरे कोई इंटर रिलेशनशिप है। सामान्यतः कक्षाओं में टीचर्स के माध्यम से ये बोला जाता है
विज्ञान क्यों ले रहे हैं, आर्ट्स क्यों पढ़ रहे हो, कॉमर्स क्यों पढ़ रहे हो। विज्ञान का विद्यार्थी है तो उसको जोड़ते हैं कि हाँ विज्ञान का है तो ये या तो डॉक्टर बनना चाह रहा होगा या इंजीनियर बनना चाह रहा होगा, इसलिए साइंस लेना जरूरी है। कॉमर्स का विद्यार्थी है तो उससे टीचर अपेक्षा करता है या टीचर को समझ में आता है, सामान्य व्यक्ति को समझ में आता है। कॉमर्स लिया मतलब बिजनेस माइंड है, इसका बिजनेस की तरफ। कला संकाय का विद्यार्थी है, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है तो बोलते हैं हाँ आईएएस बनना चाह रहा होगा, आईएएस यूपीएससी देना चाह रहा होगा, पीएससी देना चाह रहा होगा। ऐसा आपके विषय के चयन से उसको कोरिलेट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा का किसी ना किसी आपके आयाम से संबंध है और इन्हीं आयामों को एक दूसरे के साथ सह संबंध को ज्ञात करने की क्रिया, जानने की क्रिया क्या कहलाती है, सह संबंध कहलाता है। अंग्रेजी में कोरिलेशन बोलते हैं। समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो समाजशास्त्र में शिक्षा का और आपके ज्ञान का, शिक्षा का आपके मनोविज्ञान का, शिक्षा का स्वास्थ्य से, जनसंख्या में स्त्री और पुरुष का अनुपात से, स्त्री और पुरुष की, पति और पत्नी की उम्र से एक कोरिलेशन है, एक संबंध है जो हम समाजशास्त्र में समाज का ही अध्ययन करते हैं। सामाजिक ताने बाने का ही अध्ययन करना समाजशास्त्र है। अर्थशास्त्र की बात करें तो एक चर का दूसरे चर के साथ संबंध को व्यक्त करना सह संबंध है। शोध जब हम करते हैं, किसी समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं तो एक समस्या का दूसरी समस्या के साथ संबंध है कि नहीं। गरीबी का विकास के साथ कुछ संबंध है, संबंध होगा, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। व्यक्ति की अमीरी का विकास से संबंध है, वो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, पक्ष तो दो ही होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी। इन्हीं सब बातों का अध्ययन करने के लिए सह संबंध की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? तमाम विद्वान हैं, विद्वानों ने अपने अपने तरीके से जो है सह संबंध को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, जिसमें कुछ अर्थशास्त्रियों की, संख्या शास्त्रियों की परिभाषाएं हैं, जिसमें प्रोफेसर किंग हैं, उनका कहना है कि दो पदमालाओं अथवा समूहों के मध्य कार्य कारण संबंध को ही सह संबंध कहते हैं। हर जगह दो पदमाला, दो चर, दो व्यक्ति, स्त्री पुरुष, शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार, संपन्नता निर्धनता, रोजगार और बेरोजगारी, शिक्षा और बेरोजगारी, सब क्या है, इनके बीच में क्या कोरिलेशन है। इसी बात को किंग साहब ने सहसंबंध के रूप में परिभाषित किया है। क्लियर? अब हम आते हैं कि ये जो सहसंबंध है, सहसंबंध कितने प्रकार का होता है।
बहुत संक्षिप्त में हम लेंगे, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पार्ट में यदि ज्यादा समय देंगे तो आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस अपने समय को ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना है। इसके लिए हम जो थ्योरेटिकल पार्ट में सिर्फ चर्चा भर करेंगे, उसको आप लिखते जाएंगे या सुनते जाएंगे, जो भी बन जाता है। तो सहसंबंध मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणात्मक सहसंबंध और दूसरा होता है मात्रात्मक सहसंबंध। गुणात्मक सहसंबंध जो मूल रूप से होता है वो संख्या में अपन व्यक्त नहीं करते, सूत्र रूप में उसका कैलकुलेशन नहीं करना है, उसको हम चित्रीय रूप में प्रदर्शन करते हैं, रेखीय रूप में प्रदर्शन करते हैं। तो जो गुणात्मक सहसंबंध है वो मूल रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय सहसंबंध और दूसरा होता है वक्रात्मक सहसंबंध। इन दोनों सहसंबंध को एक रेखा चित्र के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, जिसमें आपको जब हम रिसर्च की बात करेंगे या कैलकुलेशन की बात करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा महत्व हमारे लिए नहीं रहता है। दूसरा जो सहसंबंध होता पहला होता है धनात्मक सहसंबंध, दूसरा होता है शून्य सहसंबंध और तीसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध। अब धनात्मक सहसंबंध क्या कहलाता है? ऐसी कोई समस्या या कोई ऐसे दो चर जो आपस में सकारात्मक रूप से एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे शिक्षा और रोजगार। यदि शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है तो रोजगार की स्थिति अच्छी होगी, ये आपका धनात्मक सहसंबंध हो गया। यदि आपका शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है तो रोजगार का स्तर बहुत कमजोर, दूर उल्टा संबंध, ऋणात्मक सहसंबंध। शून्य सहसंबंध दो चरों के बीच में आपस में कोई संबद्धता नहीं है, कोई आपस में एसोसिएट नहीं। शिक्षा और मृत्यु का कोरिलेट करो, कहीं कोरिलेशन है? कुछ नहीं। शिक्षित है तो उसकी मृत्यु निश्चित है और अशिक्षित है तो भी मृत्यु निश्चित है। तो ये क्या हो गया? शून्य सहसंबंध हो गया, कहीं किसी प्रकार का इनके बीच में कोरिलेशन नहीं है। ऋणात्मक सहसंबंध, एक उत्तर को जा रहे हैं तो दूसरा पश्चिम को जा रहा है, इसका मतलब उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है, उल्टे चल रहे हैं। तो ऐसा सहसंबंध क्या कहलाएगा? ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। क्लियर? तो सहसंबंध ज्ञात करने की दो विधियां, पहली गुणात्मक सहसंबंध, उसकी दो विधियां रेखीय सहसंबंध, वक्रात्मक सहसंबंध। फिर आ जाइए दूसरा सहसंबंध में मात्रात्मक सहसंबंध तीन प्रकार का होता है, धनात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। क्लियर? इतना समझ में? अब हम आपको ले चलते हैं सहसंबंध ज्ञात करने की कुछ विधियां होती है। ठीक है? तो इन विधियों में
जो हमने मात्रात्मक सहसंबंध है, मात्रात्मक सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए तीन चार तरह की विधियां हैं। तो जो जिसमें पहली प्रकार की जो विधि है वो विधि है कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक। कौन सी विधि? कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि। ये विधि भी दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में, सतत श्रेणी में। रीति इसकी होती है, एक प्रत्यक्ष रीति होती है और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष रीति। ठीक है, फॉर्मूला लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन कार्ल पियर्सन ने इसको ज्ञात करने के बताए। अब वो चार प्रकार के फॉर्मूले जो हैं अलग अलग रीति में अलग अलग तरीके के, प्रत्यक्ष रीति में चार प्रकार के हैं और अप्रत्यक्ष रीति में भी चार प्रकार के हैं। तो यदि कहें तो मैं उसको थोड़ा सा लिख देता हूं, लिख लीजिएगा, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज होंगे ज्यादा। तो विशेष रूप से हम जो इस्तेमाल करते हैं, चल जाएगा कार्ल पियर्सन ज्ञात की जो विधि है प्रत्यक्ष रीति, प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है, ये नहीं है सर, ये सर बोर्ड के लिए अगर। अच्छा, इसमें हो जाएगा? यस सर, दोनों में हो जाएगा सर, जैसा आप। तो ये है प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति का पहला फॉर्मूला है R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई बेटा एन सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई। अब इनमें आपको यह मालूम होना चाहिए R इक्वल टू कोरिलेशन, सिग्मा इक्वल टू योग इसको बोलते हैं। ठीक है, एन मीन्स संख्या, यह है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन। एक्स मीन्स एक्स चर और वाई मीन्स वाई चर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों का। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला इसी का और उन्होंने दिया, R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बेटा एन का होल स्क्वायर मल्टी सिग्मा डी स्क्वायर वाई बटा एन है वही। इसमें क्या है, अंडर रूट जो है लगा दिया। तीसरा एक फॉर्मूला फिर और दिया उन्होंने, R इक्वल टू
सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स मल्टी सिग्मा डी स्क्वायर। ये तीसरा फॉर्मूला दिया। फिर एक चौथा फॉर्मूला भी लिखा, आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स सिग्मा डी स्क्वायर वाई एंटी लॉग सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट लॉग सिग्मा डी स्क्वायर वाई एक्स प्लस सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ठीक है, अब ये इतने फार्मूले हो गए। अब एक बच्चा यदि एक विधि को ज्ञात करने के लिए 4 फॉर्मूले याद करे तो परेशान हो जाएगा। ठीक, तो इन सब चीजों को सॉर्ट करने के लिए इस विधि में कोई भी एक फॉर्मूला को ले लेते हैं, बस ज्यादा नहीं लेते। ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है सबसे पहले नंबर का, वो भी सरल है, लेकिन उसमें दिक्कत ये जाती है विद्यार्थी को कि मीन अलग निकालना पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकालना पड़ता है, तब कहीं जाके आप कोरिलेशन निकालते हैं। तो इसके लिए जो सरल सा फॉर्मूला है, वो सरल फॉर्मूला हम आपको उसका बता देंगे कि इसको आप जो है कर सकते हैं। ये वाला जो है दूसरे नंबर का, सॉरी, ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला सबसे सरल फॉर्मूला है। ठीक है, अन्य फॉर्मूलों को आपको याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला है, आप लगा देंगे किसमें, प्रत्यक्ष रीति में। अब इसका कहें तो इसका थोड़ा सा अपन क्या देख सकते हैं, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे रखना। अच्छा, रखना है। हाँ, अब ठीक। प्रत्यक्ष रीति का एक उदाहरण जो है सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए, जैसा हमने एक सवाल लिखे हैं कि निम्न समंकों से सहसंबंध की गणना कीजिए। क्या है, निम्न समंकों से सहसंबंध की गणना कीजिए। कैसा कि इस कक्षा में जो बैठे हुए विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों का ऊंचाई और वजन के साथ कोई सहसंबंध है, तो इसको निकालना है। तो ये मान लीजिए एक तरफ ये हाइट है
क्या है? हाइट। तो हाइट को देख लीजिए क्या है, 57 इंच है, 57 किलो वजन, वो सॉरी 57 इंच की ऊंचाई है, 59 की है, 62 की है, 63 की है, 64 की है, 65 की है, 55 की है, 58 की है और 57। ये क्या है? हाइट। तो इसको मान लेते हैं हम एक्स चर, ठीक है। दूसरा है उसका वेट। वेट में हम देखते हैं कि वेट है 113 केजी, 117 केजी, 126 केजी, 126 केजी, 130 केजी, 129 केजी, 111 केजी, 116 केजी और 112 केजी। अब इन 57 इंच हाइट के कितने लोग हैं? ऐसे लोग हैं जिनका 113 किलो वजन। मैं वजन लेके आया, ये सब कुछ नहीं लूंगा, पानी, ठीक है। 59 इंची हाइट के ऐसे लोग हैं 117 निकले। तो इस हाइट और वेट के बीच में क्या कोरिलेशन है? डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आपकी हाइट देखते फिर वो वजन करेंगे, हाँ आपके हाइट के हिसाब से वजन ज्यादा है, बोलते नहीं बोलते? तो कोई कोरिलेशन है कि नहीं? कोरिलेशन है, तभी डॉक्टर बोलता है कि वेट थोड़ा लूज करो, ठीक है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये क्या ले रहे हैं? प्रत्यक्ष रीति से लगाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका और इनका दोनों का योग करेंगे। क्या करते हैं? योग करेंगे। तो जोड़ लीजिए, 9 7 16 2 18 और 3 21, 4 25, 5 30, 5 35, 8 43 और 7 50, 5 5 10, 5 15, 6 21, 6 27, 27 6 33, 33 6 39, 39 5 44, 44 और 10 54, ठीक है। अब ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें इसका निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज। ए निकालेंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा माने सम, सम माने योग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसको सम निकालने के लिए तो क्या है, 540 अपॉन 9 से गुणा की, कितना आ गया? 60 आ गया। ए कितना आया? 60। तो ये क्या हो गया? एक्चुअल एवरेज हो गया हमारा। क्या निकाला? एक्चुअल एवरेज। अब हमको क्या करना है? इससे हम डेविएशन निकालेंगे। क्या करेंगे? डेविएशन, अंतर ज्ञात करेंगे। तो इसको यहां लिख देंगे डी एक्स। डी एक्स कितना है? डी एक्स का कितना है? डी 60 से ज्ञात करना है डी एक्स। डेविएशन फ्रॉम एक्स सीरीज, इससे एक्स सीरीज से इसका अंतर, विचलन कितना है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो 60 से 57 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -3। इसमें क्या है? कितना है? सॉरी, -1। यहां कितना आया? +2। यहां
+3 यहां, +4 यहां, प्लस यहां -5 यहां, -2 यहां, 3। ठीक है। अब आपको यहां क्या करना है, फिर एक कॉलम और बनेगा। ये जो डेविएशन है इसका स्क्वायर करना है। डेविएशन जो निकला इसका स्क्वायर करना है। डेविएशन क्या निकला, 3, 3 त्रिका 9, 1 एकम 1, 2 दूने 4, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, पचम 25, पचम 25, 2 दूने 4, 3 त्रिका 9। अब आप इसमें क्या करें कि इसमें माइनस माइनस के जितने हैं उनको योग कर लीजिए, प्लस प्लस के हैं जितने उनका योग कर दीजिए। ठीक है। माइनस के कितने हैं, 3 4 और 4 और 5 9 और 5 14, कितने हैं। और प्लस के कितने हैं, 5 4 9 और 4 कितना है, 14 है, 9 5 14 बराबर कितना आया। ठीक है, क्या आया, 0 आया। ठीक है ना। अब आप यहां आओ, इसमें आ जाइए। अब इसमें हमें निकालना है dy, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। योग कर दीजिए, 7 3 10 6 16 6 16 6 22, 22 और 9 31 32 6 38 और 2 40, 2 4 5 6 2 8 10 3 13 2 15 16 17 18, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया। इसका एक कितना आएगा, सिग्मा डी एक्स अपॉन सिग्मा वाई अपॉन एन, कितना आया 1080/9, कितना आया 120 आया। ठीक है, तो यहां क्या कर देंगे, -120। अब यहां पे फिर डेविएशन ज्ञात करिए, क्या आएगा, -7 -3 +6 +6 +10 +9 -9 -4 -8। अब इसमें भी ऐसे कर दीजिए, प्लस प्लस का कर दीजिए, माइनस माइनस कर दीजिए, कितना आया, 7 3 10, 10 और 9 19, 4 23 और 23 और 8 और प्लस का कितना होगा, 9 10 19, 19 10 29 और 2 31। ठीक है। अब एक कॉलम और आएगा, कौन आएगा, d²y। अब कितना आया, 49 9 36 36 100 81 81 16। ठीक है, इसको भी जोड़ दीजिए, टोटल कर दीजिए, एक कॉलम और बनेगा। अभी कौन बनेगा,
डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई में क्या करना है, ये जो डी एक्स है और ये जो है डी वाई है, इसको हमें करना है। तो 9 या 27, और दूसरे नंबर पे क्या है, 3 एकम है, 7 21, सॉरी, सात 21, और फिर क्या है, ये 1 का और 3 का, तो कितना आएगा 3, फिर 2 और 6 का, तो कितना 12, 18, 40, 10 चौको 40, और फिर कितना आएगा 45। और 45 तो आना है, लेकिन प्लस का आएगा कि माइनस का, प्लस का, 9 अपना 45, फिर क्या आया 4 दूने 8, और फिर 8 × 24। इसमें प्लस माइनस तो नहीं कहीं है, नहीं है। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, जोड़ा ना, ये कितना आया, और ये आएगा 216 आया, ये ऐसे ही है, हैं? करते जाइए, आप लोग के पास तो कैलकुलेटर भी है, ठीक है। अब इतना निकाल लिया, इतना आपको कैलकुलेशन यहां पर करना है, इस टेबल पे करना है। अब ये टेबल बनने के बाद में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स मल्टी सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ठीक। अब सिग्मा डी एक्स डी वाई कौन सा है, सिग्मा डी एक्स डी वाई 216, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का जोड़ा क्या, नहीं जोड़ा, इसको जोड़ो, कितना है 102, कितना है 102, तो यहां पर 102 हो जाएगा, इसका कितना है 472, ठीक है। अब 472 और इसका आपस में क्या करें, गुणा कर दें, 216 बटे, इनका कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 48 144, 48 144 का आप क्या करना है, रूट निकालना है, कितना आएगा, हाँ निकालिए फटाफट, टाइम नहीं है क्योंकि आप ऑनलाइन भी चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका कितना इक्वल टू 216 बटे 219.41 इक्वल टू, अब इसको 219 से डिवाइड कर दीजिए 216 को, तो कितना आया, कितना आएगा 0.98, आपका आंसर आए R इक्वल टू 0.98। अब यहां पर कोरिलेशनशिप
हाइट और वेट के बीच में जो कोरिलेशनशिप है वो हाईएस्ट है। क्या है? हाईएस्ट कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में, ऊंचाई और वजन के बीच में। हाईली सिग्निफिकेंट है आपकी ये प्रॉब्लम। क्लियर? तो ये क्या है कि हो गई प्रत्यक्ष रीति से कोरिलेशन की गणना। क्लियर? इसको खत्म करें। ऑफलाइन नहीं चल रहा है ना बेटा? अब ये देखिए, ये प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात करने की विधि है। अब हमें समस्या ये आती है कभी कि ये बार बार जो एवरेज यहां निकालना पड़ा ना, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़े आपको। एक्स सीरीज का एवरेज निकालना पड़ा, वाई सीरीज का एवरेज निकालना पड़ा, ये आपका एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। और यदि आप अप्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करते हैं तो अप्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करने से आपको इस तरह के एवरेज की गणना नहीं करना पड़ती। इसलिए ज्यादातर जो है एक्चुअल में इस रीति का प्रयोग जो है एक कार्ल पियर्सन नाम के अर्थशास्त्री, संख्या शास्त्री हुए थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम 1890 में जो है इस रीति का प्रयोग किया था, विशेष रूप से बायोलॉजी के कि हार्मोन्स, जीन्स और इसमें कई प्रकार क्या इनमें कोरिलेशनशिप होती है मशीनरी में, उसको बायोलॉजी के बीच में कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए कार्ल पियर्सन ने इस विधि का इजाद किया था। और वो धीरे धीरे फिर जो है फैलते 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 सभी विषयों में लगभग जो है इस कोरिलेशन का यूज होने लगा। क्लियर? तो अब देखते हैं अप्रत्यक्ष रीति। अप्रत्यक्ष रीति इसको अंग्रेजी में इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। इसके भी फॉर्मूला उन्होंने कई तरीके के बताए हैं। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं। इनके जो लिखे फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आप देखो। तो पहला फॉर्मूला है R बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन। ठीक? A1 माइनस X1 A2 माइनस X2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन X, स्टैंडर्ड डेविएशन Y। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। फिर एक सेकंड फॉर्मूला भी उन्होंने बताया। सेकंड फॉर्मूला में बताया R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन सिग्मा डी एक्स मल्टी सिग्मा डी वाई अपॉन एन होल अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते गए, जैसे जैसे उनके दिमाग में आता गया तो उसमें परिमार्जन करते गए। तो थोड़ा सा यहां और चेंज किया। फिर एक इसी में और एक फॉर्मूला निकाला। इसका फॉर्मूला है
सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx गुणे सिग्मा dy अपॉन n होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का वर्ग अपॉन n सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी एक्स का होल अपॉन n। एक फॉर्मूला ये दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला अब इसमें भी अब आप ढूंढते रहो कि हम क्या करें क्या करें क्या नहीं करें, इसमें भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? फर्स्ट वाला। फिर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ज्ञात करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। एवरेज भी निकालना पड़ेगा। तो फिर ये जो है ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला माना गया जो अभी भी चल रहा है, इसका उपयोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक इसमें इनडायरेक्ट मेथड में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दें। ये 45 पेज की प्रॉब्लम में से हमने आपको 1 घंटे में कोशिश किया कि शॉर्ट में आपको बता दें। अब एक प्रॉब्लम ले लीजिए, मान लीजिए दो चर हैं x और y, हमेशा a चर होता, b चर होता या x चर होता, y चर होता, यही आप यूज करते हैं। तो मान लीजिए दो चर हैं, कोई भी ले लीजिए, चाहे जो वो आपकी मर्जी है कि हाँ हम इसको मानेंगे। तो इसमें x चर, अब x चर की वैल्यू दी हुई है 78, 89, 97, 69, 59, 79, 80, 68, 61, ठीक है। और y की वैल्यू दी हुई है, y को वैल्यू है 125, 137, 156, 112 और 107, 136, 123 और 108। ये आपकी वैल्यू दी हुई है। अब क्या करना है इसमें, इसमें आप dx निकालना है सबसे पहले। तो dx निकालने के लिए आपको यहां पर क्या करना है, एवरेज कहीं निकालने की आवश्यकता नहीं, एवरेज नहीं निकालेंगे। एक क्या है, एज्यूम्ड एवरेज, कल्पित माध्य की कल्पना करते हैं कि इनका औसत इन्हीं संख्या में से कोई होगी, तो इसको कोई कल्पित माध्य मान, वो अपन ने क्या